دوستو ان دس رپورٹ اینڈ انالیسز میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو آپ سب تو جانتے ہی ہوں گے کہ ایران اور اسرائیل اپنے کانفلکٹس کی وجہ سے ہمیشہ ہائی لائٹس میں ہی رہے ہیں۔ تو دوستو آئیے آج ہم بات کریں گے اسرائیل کی اسٹریٹجی ایران کو چیک میٹ کرنے کے لیے کیا ہے۔ دوستو ایران اور اسرائیل نے اب تک فل سکیل کانفلکٹ کو اوائڈ کیا ہے، بلیٹس لیفٹ اور رائٹ سے بچاتے ہوئے، لیکن اسد کے ڈپارچر کے بعد سیریا نے لینڈسکیپ کو ڈریسٹکلی بدل دیا ہے صرف کچھ ہی گھنٹوں میں۔ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم اب ایک ریجنل کانفلکٹ کے ورج پر ہے۔ اسرائیلی گراؤنڈ فورسز نے ڈی ملٹرائزڈ زون کو ایکسپینڈ کیا اور سیرین سائٹ کو گولن ہائٹس پر کروشل ہائٹس کیپچر کیے۔ اسرائیلی جیٹس نے بامبنگ کی ہے اور اسرائیلی ٹینکس اب ڈیمسکس کے صرف 30 کلومیٹرز کے ڈسٹنس پر ہے یا شاید اس سے بھی قریب۔ انہوں نے سیریا کے کیمیکل ویپنز اور ایڈوانسڈ ویپنری لوکیشنز کو ڈسٹروائے کر دیا ہے تاکہ ایکسٹریمسٹس انہیں ہاتھ نہ لگا سکے۔ میڈا ایئر بیس کے پاس ڈیمسکس کے قریب ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اور ٹارٹس کے پاس ایک اسپیسیفک ایئر اسٹرائک اتنا بڑا تھا کہ اس نے ارتھ کویک کی میگنیچیوڈ رجسٹر کر دی۔ اسرائیلی ایئر فورس نے ایلیپو، کمیشی، لٹاکیا، ہما اور کیترا کے آس پاس کے ٹارگٹس پر بھی اسٹرائکس کیے ہیں، جس میں ہیلی کاپٹرز، جیٹ فائٹرز اور میزائل ڈپوٹس کو ایکسٹینسو ڈیمیج پہنچایا گیا ہے۔ یہ ایک گیم چینجر ہے کیونکہ اب اسرائیل بنا یو ایس کے اسسٹنس یا اپروول کے ایران کی ملٹری اور نیوکلیئر سائٹس پر پریمپٹیو ایئر اسٹرائکس لانچ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کی ہسٹری کے سب سے بڑے ایئر آپریشن میں اب تک ٹوٹل 480 پلس ٹارگٹس کو سٹرائک کیا گیا ہے، جس میں سیریا کی ملٹری کیپیسٹی کا لگ بھگ 80% ڈسٹروائے ہو چکا ہے۔ باقی پورشن کو اگلے کچھ ہفتوں میں ختم کرنے کی امید ہے۔ اب ایک چھوٹا سا پش سپر پاور کے فیور میں سکیلز ٹپ کر سکتا ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیریا کے فائٹر جیٹس، ہیلی کاپٹرز اور دوسری ایئر ڈیفنس سسٹمز کے ڈسٹرکشن کو دکھاتا ہے، لیکن ساتھ ہی چیس گیم کے فرسٹ موو کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ سیریا کو ایک ڈینجر کے روپ میں ایلیمینیٹ کر کے اسرائیل اسے ایک سٹرائل ڈیفنس زون میں بدل رہا ہے۔ سیریا کی لگ بھگ ساری ایئر ڈیفنسز کو ختم کر کے اسرائیل ایک ایسے کوریڈور کو کریٹ کر رہا ہے جو ایران پر ایک بڑے پریمپٹیو سٹرائک کی تیاری کرتا ہے۔ دوستو ایران اب اپنے ٹینکر پلینز کو اور ہنڈریڈز آف کلومیٹرز ایسٹ تک لے جا سکتا ہے کیونکہ ایریل بیٹل لائن سیریا کے ایسٹرن بارڈر کے قریب 600 سے 700 کلومیٹر شفٹ ہو گئی ہے۔ اس سے ان کے فائٹر جیٹس اور ایران تک جا کے واپس آ سکتے ہیں، وہ بھی بنا فیول ختم ہوئے، جو پہلے امپاسبل تھا۔ ٹینکر ایئر کرافٹ ان رشین ایئر ڈیفنس بیٹریز جیسے SA-17، SA-22، SA-6، SA-8 اور SA-5 کے ڈینس ایریز کے بیچ سے چپ کے نہیں جا سکتے، لیکن اب یہ نیا سیٹ اپ ان کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ٹینکر ایئر کرافٹ بڑے، سلو اور انسٹیلتھی ہوتے ہیں اور آؤٹ ڈیٹڈ اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی ان کے لیے تھریٹ بن سکتی ہے۔ جب دونوں کنٹریز کے بیچ وار انٹینس ہوا تو 2018 میں سیریا نے اسرائیلی F-16 کو تھریٹن کیا تھا اور ایک اسرائیلی F-16 کو شوٹ ڈاؤن کر دیا تھا۔ اس کے ریزلٹ میں سیرین ایئر اسپیس اسرائیلی ٹینکر ایئر کرافٹ کے لیے آف لمٹس ہو گیا، جو اسرائیل کی ملٹری آپشنز کو لمٹ کرتا تھا۔ اسرائیل سے ایران اور واپس ایئر اسٹرائک کا آپریشن سائز اور ڈسٹنس کی وجہ سے کبھی فیزیبل نہیں تھا کیونکہ مارجن فار ایرر بہت کم تھا۔ ابھی بھی اسرائیلی F-35 اس لمیٹیشن کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر اسرائیل اپنے F-35 کو رامت ڈیوڈ ایئر بیس سے لانچ کرے تو ٹین تک کا ٹرپ اور واپس آنے کا کم سے کم 3000 کلومیٹرز تک کا ہوگا، جو جیٹس کے رینج کے باہر ہے۔ ایران پر ایک لارج سکیل پریمیٹیو سٹرائک جو میکسیمم سکسس کے ساتھ ہو ایک سٹیلتھ مشن ہونا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہوگا کہ ایکسٹرنل فیول ٹینکس اور ایکسٹرنل میزائلز کا یوز نہیں کرنا۔ یہ ایئر کرافٹ کے ایریل مینیورز اور پے لوڈ کو انکلوڈ نہیں کرتا، جو ایئر کرافٹ کی جیومیٹرک شیپ کو بدلتے ہیں اور اس کی سٹیلتھ کیپیبلٹیز کو ریڈیوس کرتے ہیں۔ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ریجن کے سب سے ایڈوانسڈ سسٹمز میں سے ہے، لیکن ایکسٹرنل فیول ٹینکس کے ساتھ F-35 کا آپریشنل رینج صرف 2700 کلومیٹر ہے، جو ابھی بھی انسفیشینٹ ہے۔
इस वजह से इसराइल का एरियल डोमिनेंस ईरान के ऊपर बिना अमेरिकन असिस्टेंस के कभी फीजिबल नहीं था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है जब सीरिया की एयर डिफेंसेस न्यूट्रलाइज हो चुकी है। सीरिया में सिर्फ कुछ ही एयर डिफेंसेस सिस्टम्स बचे हैं और इसराइली एयरफोर्स का क्लेम है कि उन्होंने सीरिया के 90% मीडियम रेंज SA-7 सिस्टम्स और 80% शॉर्ट टू मीडियम रेंज SA-22 सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सिस्टम्स कभी इसराइल के F-35 के लिए थ्रेट नहीं थे, लेकिन उनके टैंकर प्लेन्स के लिए जरूर हज़ार्ड थे। अब थियोरेटिकली इसराइली जेट्स रामत डेविड एयरबेस से टेक ऑफ कर सकते हैं, सीरियन एरिया के IAL कॉरिडोर से फ्लाई करते हुए इराक क्रॉस करते हैं और फिर ईरान में मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करके डिस्ट्रॉय करते हैं। मिशन कंप्लीट होने के बाद जेट्स सीरियन एयर स्पेस में रिफ्यूल करके वापस आकर अपने बेस पर रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर इसराइलीज पर्टिकुलरली कॉन्फिडेंट फील करें। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसराइल ने इफेक्टिवली एक एरियल कॉरिडोर ओपन कर दिया है जहां से उनका एयर फोर्स फ्रीली मूव कर सकता है, इंक्लूडिंग टैंकर एयरक्राफ्ट। एरियल फ्रंट लाइन अब 600 से 700 किलोमीटर तक सीरिया के ईस्टर्न एज तक शिफ्ट हो चुकी है, जहां इसराइल के टैंकर एयरक्राफ्ट लॉइटर करके अपने फाइटर जेट्स के लिए डिस्टेंस ऑफसेट कर सकते हैं। सीरिया की एयर डिफेंसेस को रिमूव करके इसराइल एवं ईरान के सुप्रीम लीडर और IRGC कमांड के अगेंस्ट एक डिकैपिटेशन अटैक कर सकते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस संभालने के साथ इसराइल के पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एक मैसिव प्रिमिटिव अटैक एग्जीक्यूट करने की। ये अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी हो सकती है कि इसे छोड़ना मुश्किल होगा। जब तक ट्रंप का इनॉग्रेशन होगा, इसराइल के पास खुद ईरान पर अटैक करने के रिसोर्सेज होंगे और फिर US को एक वॉर में खींचने का प्लान हो सकता है। नेतन्याहू शायद नए मिलिट्री ऑप्शंस का फायदा उठाकर ट्रंप को कन्विंस करेंगे कि वो ईरान पर अटैक में उनका साथ दें, चाहे ट्रंप इनिशियली इंटरेस्टेड ना भी हो। ईरान ने एक स्टैंड ऑफ मेंटेन किया जो वॉर को ब्रेकआउट होने से रोकता रहा। ईरान के पास प्रॉक्सीज का एक नेटवर्क था जो उसे इसराइल के अगेंस्ट लेवरेज लेने के लिए यूज किया और इनमें से सबसे पावरफुल था हिजबुल्लाह जो लेबनान में बेस्ड है। अगर इसराइल ने ईरान पर एक मेजर अटैक लॉन्च किया होता तो ईरानियन लीडरशिप हिजबुल्लाह को इसराइल पर फायरिंग रिज्यूम करना अलाउ करती, जैसे 2018 में किया था। हिजबुल्लाह के अर्सलनर में लगभग 1,30,000 रॉकेट्स और मिसाइल्स होने का एस्टिमेट था, लेकिन जून 2024 में ईरान की KS फोर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव जो हिजबुल्लाह ऑपरेशंस के चार्ज में था, उन्होंने पब्लिकली क्लेम किया कि ग्रुप के पास 1 मिलियन से ज्यादा रॉकेट्स और मिसाइल्स है। ये बात सच है या नहीं, लेकिन इसराइल के रीसेंट डिकैपिटेशन अटैक्स ने हिजबुल्लाह की रेपुटेशन को सिग्निफिकेंटली डिमिनिश कर दिया है, चाहे एस्टिमेट का बॉटम एंड भी हो। ये एक ह्यूज फायर पावर को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट ये है कि हिजबुल्लाह के थ्रेट के बिना ईरान के पास डिटरेंस की कमी है, इसलिए ईरानियंस अपनी तरफ से हिजबुल्लाह को जितना जल्दी हो सके स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीरिया के कियास के बीच एक और प्रॉब्लम सामने आई है, लेकिन हिजबुल्लाह का कमांड स्ट्रक्चर कंप्रोमाइज हो चुका है, शायद रेपियर के बियॉन्ड। इस पॉइंट पर हम बाद में फिर से वापस आएंगे। जब सीरियन रेबल्स कैपिटल की तरफ मार्च कर रहे थे, इसराइल ने इनिशिएटिव लेते हुए डेमेस्कस के साउथ वेस्ट में गोलन हाइट्स के करीब एक बफर जोन एस्टैब्लिश किया। इसराइली ट्रूप्स ने सीरिया के अबंडोन्ड गोलन हाइट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में बिना किसी रेसिस्टेंस के जल्दी मूव करके उन्हें कैप्चर कर लिया। इसराइली लीडरशिप के मुताबिक इसका गोल हॉस्टाइल फोर्सेस को इसराइल पर एडवांस करने से रोकना है और नेतन्याहू इस ऑपरेशन को टेम्पररी बोलते हैं। लेकिन जो लैंड कैप्चर किया गया है उसका मकसद ये एंश्योर करना है कि कोई भी एनिमी फोर्स इसराइल के बॉर्डर को बिल्कुल पास एम्बेड ना हो सके। इसराइली आर्मी को ये पोजीशंस ऑक्यूपाई करने का ऑर्डर दिया गया है। इसराइलीज ने साइलेंटली माउंट हर्मन के सीरियन साइट का कंट्रोल ले लिया है, जो एक और चेस मूव के बराबर है। 2814 मीटर्स एलिवेशन के पीक्स एयर डिफेंसेस स्पेशली रेडर्स के लिए ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट करते हैं। इस केस में माउंट हर्मन ने डिकेड्स तक इसराइल के एयर डिफेंसेस को ऑब्सक्योर किया था, जिसकी वजह से माउंटेन्स के पार और लेबनान के कुछ लो फ्लाइंग प्लेन्स को देखना मुश्किल होता था। ये एक टेम्पररी डिफेंसिव पोजीशन है जब तक एक सूटेबल अरेंजमेंट नहीं मिल जाता। इस ब्लाइंड एरिया का फायदा ड्रोन्स उठा सकते थे, जो उन्हें
उन्हें बार बार इसराइल में एंटर करने की परमिशन देता। दोस्तों, शायद इसी तरह ईरानियन और हिजबुल्लाह ड्रोन्स ने इसराइल के अंदर डीपली एंटर किया था। ये ब्लाइंड गैप ईरान के लेबनान के लैंड ब्रिज का एक हिस्सा था, जो माउंट हर्मन को कवर के रूप में यूज करता था। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है, क्योंकि पहले ईरान माउंट हर्मन के नीचे से हिजबुल्लाह को सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा था, इसराइल की नजर के बिल्कुल नीचे। अब जब इसराइलीज माउंट हर्मन का कंट्रोल ले चुके हैं, उनका प्लान है कि वहां रैडर्स इंस्टॉल करें जो सीरिया और लेबनान दोनों पर एक क्लियर व्यू देंगे जब फैसिलिटीज ऑपरेशनल हो जाएंगी। इसराइल एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी डेवलप करेगा जो अप्रोचिंग ड्रोन्स और लो फ्लाइंग जेट्स को डिटेक्ट करेगा। साथ ही इसराइली इंटेलिजेंस इस बदलते सिस्टम का यूज करेगा। ईरान के लिए हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब साउदर्न लेबनान और सीरिया में कोई भी हॉस्टाइल एक्टिविटी इसराइल के रैडर्स के अंडर होगा और मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट के टारगेट बनेगा। हिजबुल्लाह के नए चीफ ने सैटरडे को ये बात एक्सेप्ट की कि ऑर्गेनाइजेशन ने सीरिया के थ्रू अपना सप्लाई लाइन खो दिया है, और अगर ईरान कोई नया रूट ढूंढ रहा है हिजबुल्लाह तक रिसोर्सेज पहुंचा भी दे तो भी ग्रुप के लिए कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि पहले बताया गया, हिजबुल्लाह सीवियरली कंप्रोमाइज्ड हो चुका है और वीक्स के बैक टू बैक डिकैपिटेशन अटैक्स ने ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को तोड़ दिया है। एक लीडर, एक ऑफिसर और नए मेंबर्स को प्रमोट करके वैकेंसीज फिल करने के प्रोसेस के कारण ग्रुप और भी कमजोर हो गया है। इसराइल के इंटेलिजेंस सर्विस के ऑपरेटर्स पहले से ही हिजबुल्लाह के लोअर एक्लॉन्स में प्रेजेंट थे, लेकिन बीहेडिंग अटैक्स ने ग्रुप के स्ट्रक्चर को और भी डिस्टर्ब कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, रिपोर्ट्स आई है कि ट्रंप का टीम अब ईरान के अगेंस्ट प्रिमिटिव एयर स्ट्राइक्स कंसिडर कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू वो शख्स है जिसने ये सब पॉसिबल बनाया। उन्होंने ट्रंप को ये ऑप्शन सिल्वर प्लेटर पर दे दिया है। अगर ईरान दोबारा हिजबुल्लाह के साथ अपने टाइज एस्टैब्लिश करे भी तो भी ग्रुप अपनी कैपेबिलिटीज खो देगा, चाहे उसके पास कितने भी रॉकेट्स और मिसाइल्स हो। इसकी वजह ये है कि हिजबुल्लाह के अंदर बहुत ज्यादा लीक्स है जो उसके ऑपरेशंस को सस्टेन नहीं करने देंगे। अगर ईरान इजरायली एजेंट्स को ग्रुप के अंदर से आइडेंटिफाई और एलिमिनेट नहीं कर पाता तो हिजबुल्लाह अपनी कैपेबिलिटीज जल्द ही खो देगा। दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस। इसराइल की स्ट्रेटजी ईरान के चेकमेट करने के लिए क्या होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।